السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمحہ جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ہی مجھے بلاش بھائی نے نہیں مارا، اس نے فری کو دیکھ کر کہا۔ سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے پتا ہے گولی انہوں نے نہیں چلائی، مگر جس نے بھی چلائی ہے ان کے کہنے پر چلائی ہے، کیونکہ سب نے دیکھا تھا حملہ تم پر نہیں سالار بھائی پر ہوا تھا، اور ان کو بچاتے ہوئے گولی تمہیں لگی۔ آیت اتنی بدگمان تھی کہ جزا کے کہنے پر بھی وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ بلاش بے قصور ہے۔ آپ لوگ یہ باتیں بعد میں کیجیے گا، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، شفا نے جزا کی حالت دیکھ کر کہا، جو بہت تکلیف میں لگ گئی تھی۔ ابھی تو فری اور مردوں کے ہر کوئی اس بات سے انجان تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ ہاں آیت، ابھی تم بھی پرسکون ہو جاؤ، جزا تم بھی آرام کرو، ہم باہر جاتے ہیں۔ عقیدت ان کو لے کر خود بھی باہر نکل گئی، مگر فری گہری سوچ میں وہیں کھڑی تھی، کیونکہ آدم اسے صاف کہہ چکا تھا کہ اس معاملے میں بالاش شاہ انوالو نہیں، اس کا مطلب نہیں تھا۔ پھر کیوں آیت اتنی شیور تھی اس بات پر کہ وہ سب بالاش نے کروایا؟ آپ ہی مجھے بلاش بھائی اور آدم بھائی سے بات کرنی ہے، ان کو بھیجیں، ابھی تم آرام کرو جزا، ہم یہ سب بعد میں نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے، اس نے فری کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ فون کے باہر نکل گئی۔ یہی ایک موقع تھا، وہ سالار پر لگے الزام کو غلط ثابت کر سکتی تھی۔ سالار کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ ایک بار بھی اسے دیکھنے نہیں آیا تھا صبح سے جب سب آ چکے تھے، مگر وہ دشمن جہاں پتہ نہیں کہاں تھا۔ کیا اسے میری ذرا بھی فکر نہیں ہوئی؟ وہ دل میں ہی خود سے ہم کلام تھی۔ عرش اور آدم ایک ساتھ داخل ہوئے تھے، وہ دونوں ہی اب کپڑے بدل چکے تھے۔ جزا بچے ٹھیک ہو تم؟ آدم نے جزا کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ بلاش بھائی، اس نے آدم سے بس اتنا پوچھا۔ وہ آ رہا ہے، لیکن تم کیوں پریشان ہو؟ خود پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ نہیں بھائی، آپ ان کو بھی بلائیں، مجھے ان کو کچھ بتانا ہے۔ وہ بس ضد تھی اس کو بتانے کے لیے۔ بالاش شاہ آدم خان زادہ کی کال پر اسپتال میں داخل ہوا تھا۔ سامنے سے آتے جاتے فرجات پر نظر پڑتے ہی چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے، ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بھائی آپ یہاں بھی؟ ابھی نکلنے والا ہی تھا، کیونکہ اب سب ٹھیک ہے۔ بالاش شاہ کو دیکھتا وہ اس کے سامنے آ رکا تھا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ بھائی، جسٹ شٹ اپ، اپنی زبان سے مجھے بھائی مت کہنا، تم سے مت تو میں گھر آ کر نمٹوں گا، بالاش سرد لہجے میں بولتا وارڈ کے اندر پڑ گیا۔ آدم اور عرش آدم کے ہی انتظار میں تھے۔ ان کے اندر آتے ہی آدم سائڈ پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئے اور بلاش کو بھی اشارہ کیا بیٹھنے کا، جبکہ عرش اس کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بلاش نے جزا کو دیکھ کر پوچھا۔ کل رات ہی وہ بہت بڑے حادثے سے گزری تھی، مگر اللہ نے موذاتی طور پر اس کی زندگی بچا لی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر اپنا جملہ مکمل کیا۔ جی کہیے۔ بالاش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ عرش اور آدم بھی سارا دھیان اس پر تھا کہ وہ آخر کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ فاطمہ کا قاتل زندہ ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے سب کے تاثرات دیکھ کے کوشش کی، مگر سب کے چہرے پر مختلف تاثرات تھے۔ عرش حیران تھا جزا کے الفاظ پہ۔ زندہ تھے کا مطلب کیا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے غلطی سے کسی کو مار دیا تھا، اور آدم یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ قاتل کو جانتی ہے، جبکہ بالاج ان سب میں نارمل تاثرات لیے بیٹھا تھا، جبکہ دل و دماغ پر عجیب ٹھیس سی اٹھی تھی، یہ سوچ کے کہ وہ اپنی محبت میں گم ہو کر اپنی بہن کے قاتل کو سزا دینے میں دیر کر گیا تھا۔ لیکن بہت جلد وہ سالار کو اس کے کیے کی سزا دے کر رہے گا۔ کیا مطلب ہے جزا تمہاری اس بات کا؟ کیا تم جانتی ہو قاتل کون ہے؟ آدم کھڑے ہو کر اس سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر گولی چلانے والا فاطمہ کا قاتل ہی تھا، میں نے خود دیکھا۔ جزا کی بات پر سب سکتے میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ تینوں ہی جانتے تھے جزا پر گولی ارمان نیازی نے چلائی تھی۔ تو کیا فاطمہ کو مارنے والا بھی ارمان نیازی ہی تھا؟ مگر کیوں؟ اس نے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے فاطمہ سے؟ یہ سوچنے والے صرف آدم اور عرش ہی تھے، جبکہ آدم پر سوچ نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے گولی چلانے والے کی شکل دیکھی تھی؟ آدم اٹھ کے اس کے پاس بیٹھتا بتابی سے پوچھنے لگا۔ جزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون تھا وہ، تم جسے جانتی ہو؟ عرش نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتی، مگر میں نے اس رات فارم ہاؤس سے نکلتے دیکھا تھا۔ پھر وہ انہیں سب بتانے لگی۔
अनफ 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 बहुत हुआ, इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। आप अपने शौहर को बचाने के लिए कहानी बनाना बंद करें। वो ना चाहते हुए भी जिजा से इंतहाई गुस्से से बोला था। आदम और अर्श ने नागवारी से बालाज शाह का अंदाज देखा था। मैं नहीं सुनना बालाज श- जिजा की बात काटता वहां से निकलने लगा। मेरे पास सबूत है। इसे देखने के बाद आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा। इसके यकीन से कहने पर बालाज शाह के कदम रुके थे, मगर वह बिना सुने वहां से निकलता चला गया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इसके जाते ही आदम ने मोहब्बत से इसका चेहरा थामा था। इस दिन मैंने आदमी की वीडियो बनाई थी, मगर मैं डर गई थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। बाद में जब मैं बताने वाली थी, तब मैंने अर्श भाई और सलार की बातें सुनी कि वो फातिमा के कातिल को सजा दे चुके हैं, इसलिए मैं चुप हो गई। वो बोलते हुए हाँफने लगी। बस रिलैक्स, मुझे बताओ वो फोन कहाँ है? आदम ने इसे पुरसकून करके पूछा। मेरे कबर्ड के लॉकर में पड़ा है, इसने अटकते हुए जवाब दिया। ओके, तुम रिलैक्स हो जाओ, हम कर लेंगे, अब सब ठीक हो जाएगा। आदम से आराम करने का कहता बाहर निकल आया दिन। अर्श भी इसके पीछे था। भाई कौन है यार न्याजी? अर्श ने नासमझी से पूछा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई नाम इनकी जिंदगी में नहीं आया था। तुम दोनों ने किसको सजा दी है? आदम ने संजीदगी से पूछा। पहले तो वो गड़बड़ाया, फिर सर झुकाए इसे सब बताता चला गया। बहुत बड़े हो गए हो तुम लोग, अपनी मनमानी कर रहे हो। बहुत अच्छे, फिर हमारी जरूरत ही क्या है तुम लोगों को? आदम नागवारी से कहता वहां से निकल गया। पीछे वो शर्मिंदा सा वापस वार्ड में चला गया। वो सीधा जिजा के पुराने कमरे में आया। वहां आकर इसने लॉकर खोलने की कोशिश की, मगर इसमें लॉक लगा हुआ था। इससे पहले जिजा का डेट ऑफ बर्थ प्रेस किया, मगर नहीं खुला। इसके बाद इसने एक दो और कोड लगाने की कोशिश की, मगर फिर भी नहीं खुला। इसने कुछ सोचकर सालार की डेट ऑफ बर्थ लगाया तो क्लिक की आवाज के साथ खुल गया था। इसने गहरी सांस खारिज की और फोन लॉकर में से निकाला और अपने कमरे में आ गया। रात के 10 बज रहे थे। शिफा और मन्नत गहरी नींद में थी। शायद कल पूरी रात जागने की वजह से दोनों जल्दी सो गई थी। अस्पताल में फरी और रश रुके हुए थे, बाकी तो इसने जबरदस्ती घर भेज दिया था। वह कदम कदम चलता इसके पास आकर बैठा और झुककर इन दोनों के माथे पर बोसा दिया। शिफा इसे अल्लाह का इनाम लगी। जरूरत इसने कुछ जरूर इसने कुछ अच्छा किया था, जिसके बदले अल्लाह ने इसे शिफा जैसी पाक और नरम दिल लड़की से नवाजा। वह थोड़ी देर बेड से टेक लगाकर बैठ गया। जिजा का फोन ऑन करके इसमें सालार की डेट ऑफ बर्थ का कोड लगाया और गैलरी चेक करने लगा, जो कि खाली था। कुछ सोचकर इसने गूगल फोटोज ऑन किया और इसमें मौजूद पिक्चर्स देखने लगा। कलर के नाम से एक फाइल थी, जिसे ऑन करने पर 2-3 तस्वीरें और वीडियो थी। पिक्चर्स बैक साइड से ली गई थी और बकर होने की वजह से इतना साफ पता नहीं चल रहा था। शायद कांपते हाथों से बनाई गई थी पिक्चर्स। वीडियो में अरमान न्याजी इस फार्म हाउस से निकलते हुए साफ दिखाई दे रहा था और गाड़ी में से निकलने वाला समीर मलिक भी निकल के आता उठाते हुए नजर आया। वो जो पूरे 2 साल से ये मुअम्मा हल नहीं कर पाया था, एकदम एक गहरा सांस हवा में खारिज किया। ऐसा लगा एक बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया हो। लेकिन इन सब के पीछे की वजह से वो लोग भी अनजान थे। आदम सबसे पहले उठकर अपनी बीवी और बेटी पर नजर डालता कमरे से निकला। फिर फरवा बेगम से मिलकर पुलिस स्टेशन रवाना हुआ था। सर, इस औरत ने जीना हराम कर रखा है। काफी बेहुदा गालियां बक रही है, और जब से इसे पता चला है कि इसका पेशा है कुल, ये सिर्फ एक आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने की जिद कर रही है। इसके आते ही अल्ताफ ने इसे तारा मलिक की हरकतों से आगाह किया। करने दो इसे जो करना है, बस पूरी निगरानी रखना इस पर। किसी को किसी को इसकी यहाँ मौजूदगी का पता नहीं चलना चाहिए। अल्ताफ ने संजीदगी से जवाब दिया और मजीद कुछ केस की फाइल चेक करने लगा। अल्ताफ, मुझे अरमान न्याजी की बचपन से अब तक की सारी डिटेल्स चाहिए। वो कहाँ पैदा हुआ, इसकी फैमिली में कौन कौन है, सब। और ये भी पता लगाओ कि सालार फातिमा शाह के साथ इसका क्या कनेक्शन है। आदम ने संजीदगी से कहा तो वो सिर हिला गया। वो जब से अस्पताल से आया था, छत पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। हाथ में इसकी फैमिली पिक्चर थी और एक डायरी थी। आंखें जब से शदीद सुर्ख हो रही थी। जिंदगी मजीद इसे क्या क्या दिखाने वाली थी वो समझ नहीं पाया। वो कैसे अब तक फरजाद को समझ नहीं पाया। वो इतने सालों से इसके साथ था, मगर साथ होकर भी इसे समझ कैसे नहीं पाया। बात सारी एक साथ इसके दिमाग में गड़बड़ हो रही थी। आयत के जहरीले अल्फाज, जिजा की बातें, फातिमा का सालार की तारीफ करना।
अम्मा जान के अल्फाज एक बागी आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर बह गया। भाई, फरजाद ने इसे पीछे से पुकारा, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और बालाज ने कंधे पर हाथ रखा। बालाज ने उठकर इसके गाल पर अपने भारी हाथ का जितना तेज हो सकता था थप्पड़ दे मारा। फरजाद हैरानी से अपना अपना मुंह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए यकीनों से इसे देखने लगा। आज तक इसने कभी फरजाद से सख्ती से बात नहीं की थी, तो आज कैसे वो इस पर हाथ उठा गया। दोनों की उम्रों में 3-4 साल से ज्यादा का फर्क नहीं था, मगर बालाज ने इसे हमेशा इज्जत और मोहब्बत दी। भाई, बालाज ने एक और थप्पड़ मारा था इसके गाल पर। जब से जुजा से के ठीक होने का पता चला था, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बहुत रोया था, मगर इसमें हिम्मत नहीं थी कि इसके जागते हुए इसका सामना कर सके। इसलिए वो रात गए इसके सोने का यकीन करते कमरे में दाखिल हुआ था। फरी कमरे में रखे सोफे पर सोई हुई थी, जबकि अर्श कुर्सी पे बैठा चाय पीते हुए मोबाइल यूज कर रहा था। इसको आता देखकर इसके कंधे पर हाथ रखता बाहर निकल गया। वो दोनों बिन कहे एक दूसरे की बात समझ आते थे। वो जाकर कुर्सी जिजा के बेड के साथ रफ्तार इसमें बैठ गया और किसी प्यासे की तरह इसके चेहरे का तवाफ करने लगा। कल इसी टाइम इसको गोली लगी थी और एक दिन में ही जिजा का चेहरा मुरझा गया था। वो झुककर इसके माथे को छूकर दूर हुआ। वो झुककर हल्के से इसके माथे को छूकर दूर हुआ था। जिजा जो बस आंखें मूंदे लेटी थी, इसके लम्स पर झटके से आंखें खोली। अपने बहुत पास सालार को देखकर इसकी धड़कन तेज हुई थी। आंखें तेजी से नम होना शुरू हो गई। इसको जागते देख सालार अपनी नजरें चुरा गया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों अपनी जान दांव पर लगा गई? हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है, मर जाने दिया होता मुझे। सालार इसके हाथ पर अपना हाथ रखे नम लहजे में बोला। इसके लफ्जों ने जिजा को बहुत तकलीफ दी थी। इसने एक हिचकी ली थी। सालार ने अपनी गर्दन उठाकर परेशानी से इसकी तरफ देखा था। ठीक हो तुम? इसने जिजा का चेहरा थाम कर फिक्रमंदी से पूछा। जिजा को इसका वही आखिरी जुमला याद आया, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अजियत से आंखें मीच कर वो अपना चेहरा मोड़ गई। जिजा बताओ क्या हुआ है, दर्द हो रहा है क्या? इसने जिजा का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर सीधा किया। चले जाएं यहाँ से, इसने संजीदगी से कहा। इससे सालार का यह रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माफ कर दो मुझे। मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है। सालार शर्मिंदगी से और नदामत से चूर लहजे में बोला। तरस खाने की जरूरत नहीं है मुझ पर। जाए यहाँ से। जिजाब अपनी जलती सुर्ख आंखों से इसे देखती संजीदगी से बोली। इसकी आवाज अब ऊंची हो रही थी, जबकि सालार बहुत धीमी आवाज से बात कर रहा था। मेरी जान, ऐसा मत बोलो। मैं जानता हूँ मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। जिजा सुर्ख आंखों से इसे देखती गुस्से से चीख पड़ी थी, जबकि अचानक पीठ पर दर्द की एक शदीद लहर दौड़ गई, जिसका अंदाजा इसके जख्म से सब पड़ते चेहरे से बखूबी हो रहा था। इसकी आवाज सुनकर फरीहा भी उठ चुकी थी और बाहर बैठा अर्श भी अंदर आ चुका था, जबकि सालार तकलीफ से इसे देख रहा था। सालार, तुम कब आए और जिजा क्यों गुस्सा कर रही है? परी परेशानी से सालार से पूछने लगी, जो किसी पर नजर डाले बगैर वहां से निकल गया। आप ही दर्द वो जब्त से डरखड़ाते लहजे में बोली, तो अर्श और फरी जिजा की तरफ मतवज्जा हुई। इसकी हालत देखकर वो दोनों ही परेशान हो गए थे। अर्श डॉक्टर को बुलाने बाहर भागा था, जबकि फरीज के जख्म को देखने लगी, जिसमें लगी पट्टी तेजी से लाल हो रही थी। मगर मैंने क्या किया है? इसने सुर्ख आंखों से जब्त से पूछा। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। बालाज के लहजे में मान टूटने का दर्द था। मगर भाई, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने क्या किया है। बालाशाह से खींचकर अपने साथ नीचे कमरे में ले आया था और कबर्ड में एक पिक्चर्स और डायरी निकालकर इसके सामने फेंका था। हानिया और अम्मा जान बलाज को इस कदर गुस्से में नीचे आते देखकर इनके पीछे ही कमरे में दाखिल हुए थे। पिक्चर पर नजर पड़ते ही फरजाद साकित हुआ था, क्योंकि वह तस्वीर इसकी माँ बाप की थी और तस्वीर में मौजूद इसके माँ बाप की जगह कोई और नहीं बल्कि शहजाद शाह की तस्वीर थी, यानी बलाज का बाप। फरजाद को लगा इसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। जिस हकीकत को वह पिछले 3 सालों से छुपा रहा था, वो इस तरह खुल जाएगा, इसे पता नहीं था। हानिया और अम्मा जान की नजर भी इस तस्वीर पर पड़ चुकी थी। भले इस तस्वीर में शहजाद शाह बहुत जवान नजर आ रहा था, मगर अपनी बेटी की तस्वीर को कैसे नहीं पहचानती, जिसमें वो किसी अंग्रेज औरत के साथ खड़ा था। अम्मा जान का दिल हाथ पर गया था, जबकि हानिया ना समझी से अपने शौहर को देखने लगी, जो सर झुकाए जब से खड़े कड़े मराहल से गुजर रहा था। कोई जवाब है तुम्हारे पास? इस बात का जवाब दो मुझे।
बालाज ने फरजाद का गिरेबान पकड़े झंझोड़ा था। फरजाद में बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्या वजाहत देता आखिर। फरजाद बेटा, ये औरत कौन है? अम्मा जान ने बेचैनी से पूछा। ये औरत इसकी माँ है, जिससे मेरे बाप ने छुपकर शादी की थी और बाद में इनको छोड़ पकड़ पाकिस्तान आ गए थे। ये जो आपके सामने खड़ा है, आपके बेटे का खून है। बालाज ने चुपते लहजे में बोलकर सबको हैरत में डाल दिया था। क्या कह रही हो तुम? सच कह रहा हूँ मैं। और इसने एक बार भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। क्यों? आखिर क्यों? बालाज ने गुस्से से ड्रेसिंग पर मौजूद तमाम शीशों को जमीन बुस किया था। मैं आपको खोना नहीं चाहता था। फरजाद की आवाज इतनी धीमी थी कि वहां मौजूद तीनों नफूस ने बमुश्किल सुनी। मुझे अगर पता चलता कि तुम मेरे भाई हो तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देता? और उसके सामने खड़े होकर गुस्से से बोला। मुझे लगा आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जब वो शख्स ही इस दुनिया में नहीं था तो इस बात को ही दफना गया। मैं पाकिस्तान आपके साथ आया था अपने बाप की तलाश में, मगर जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा मैंने इन तस्वीर इस घर में देखी। मुझे इस दिन पहली बार पता चला कि जिस शख्स को मैं इतने सालों से तलाश कर रहा था वो कोई और नहीं, आपके डैड थे। मैंने आपको बताना चाहा मगर फिर रुक गया, क्योंकि मैं इनकी वजह से हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता था। और ना ही मैं आपके दिल में इनके लिए कोई बुरा ख्याल लाना चाहता था, क्योंकि इनकी मौत के साथ ही मेरी तमाम शिकायतें दूर हो चुकी थी। और मैं डरता था अगर आपको इस बात का पता चला तो आप हर्ट होंगे और मुझसे नफरत करना शुरू कर देंगे। यही वजह थी कि मैंने ये बात आपसे छुपाई। पर जात लम लहजे में बोलता चेहरा झुका गया। मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा था फरजाद। मुझे दुख आज इस बात का है कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। एक बार तो कहा होता कि मैं भी शहजाद शाह का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, तो खुदा की कसम मैं तुमसे कभी नाराज ना होता, ना नफरत करता। बलाश ने इसका झुका सर उठाया था और इसे थाम कर सीने से लगाया। इसने देखा इसे एक निवाले के लिए तरसते हुए। एक ही बाप का खून होने के बावजूद बलाश शाह ने एक शाहाना अंदाज में जिंदगी गुजारी थी, जबकि फरजाद ने एक वक्त के खाने के लिए भी अपने हाथों से मेहनत करके रोटी कमाई थी। वो पिछले 2 साल से भी वो उसके घर में रहने के बावजूद एक मुलाजिम की तरह तनख्वाह लेकर अपनी बीवी की हर जरूरत खुद पूरी करता था। बलाश के कहने पर कभी भी अपनी मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं लिया, कभी नहीं जताया कि जिस दौलत पर बलाश शाह राज कर रहा है इसमें बराबर का दार हकदार वो भी है। फरजाद किसी बच्चे की तरह इसके सीने में समा गया था। अम्मा जान की आंखें भी नम थी, वो नहीं जानती थी इनके बेटे ने इतनी बड़ी गलती क्यों की। मगर जो भी था, फरजाद के अपने खून होने का पता चलकर वो दुखी नहीं हुई थी, बल्कि इस बात पर खुश हुआ था कि फरजाद इनका घर का ही बच्चा है, इनका खून। जबकि हानिया अभी तक गहरे शौक में थी। आप मुझसे नाराज नहीं है? फरजाद ने परेशानी से पूछा, क्योंकि बलाश का रवैया इसकी सोच के बरअक्स था। नहीं, तुम पहले भी मेरे भाई थे और आज भी मेरे भाई हो। बस मुझे दुख इस बात का था कि तुम इतने सालों से मुझसे ये सच छुपाते रहे। और रही बात डैड ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब इस डायरी में है। तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बलाज ने फर्श से डायरी उठाकर उसके हाथ में थमा दी। अम्मा जान आगे से फरजाद की तरफ बढ़ी और इसको अपने बूढ़े बाजुओं में भेज लिया। मेरे बेटे को माफ कर देना, इसने नादानी में गलती कर दी होगी, लेकिन तुम इसे माफ कर देना। अम्मा जान अपने बेटे के लिए पोते का दिल साफ करने लगी। इसने खामोशी से झुककर अम्मा जान के माथे का बोसा लिया। इससे पहले भी अम्मा जान बलाज की तरह ही मोहब्बत करती थी, लेकिन आज एहसास अलग था। बलाज शाह इनका मेल मिलाप देखकर मोबाइल चेक करता निकल गया था, क्योंकि आज वो किसी को अच्छा सबक सिखाने का इरादा रखता था। पिछले 2 दिन से वो जिस आग में जल रहा था, इसको भी इसी आग में जलाकर राख कर देना चाहता था। रात का दूसरा पहर था जब अपने खुफिया रास्ते से आयत के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा अंधेरे में पूरी तरह डूबा हुआ था, मगर बेड खाली देखकर बलार शाह के माथे पर बल पड़े। इसने एक नजर वॉशरूम में जलती लाइट को देखकर गहरी सांस खारिज की और सोफे पर जाकर बैठ गया। वॉशरूम से शावर की आवाज बाहर तक आ रही थी। इतनी ठंड में वो शावर ले रही थी, सोचकर ही बलाज की आंखें सर्द हो गई थी। आयत की ये आदत इसे बहुत बुरी लगती थी। इसी वजह से इसको अक्सर बुखार चढ़ जाता था। 10 मिनट बाद वो टी शर्ट ट्राउजर में बालों को टॉवल से रगड़ते बाहर आई और एकदम ठिठक कर रुकी। इसे बलाश ला के क्लोन की खुशबू अपने नथनों से टकराती महसूस हुई। एकदम जैसे ही मुड़कर देखा, इसे ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक टी शर्ट पहने जिसमें इसकी कसरती बाजू वाजे नजर आ रहे थे। वो टांग पर टांग रखे बैठा, इस सुख आंखों से इसे ही घूर रहा था। बलाज जो इसी के इंतजार में बैठा था, इसको बग्गे सरापे दिखे सरापे में बाहर आता देख महवत रह गया था।
रेड कलर के ट्राउजर और टी शर्ट में इसका दूधिया रंग अंधेरे में भी दमक रहा था। ऊपर से इसका सुर्ख सरापा, नाजुक सरापा। मलाश की नजरें बहुत बेताबी से इसका तवाफ कर रही थी। मलाश आग पर नजर पड़ते ही आयत की सांस सीने में अटक गई थी। वो जानती थी घर में कोई मर्द नहीं सिवाय गार्ड्स के, तो इसके चीखने पर भी कोई इसकी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। जो कुछ इसने किया इसके बाद आयत किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो अचानक दरवाजे की तरफ भागी। मगर इससे पहले कि वो मगर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, खुद को हवा में मुअल्लक देखकर इसने अपनी सांसें रोक ली थी। बलाट जो इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से देख रहा था, इसकी चालाकी समझकर होंठों पर एक महफूज कुन मुस्कुराहट बिखर कर मासूम हुई थी, और इसको दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो अपने बाजू में उठा चुका था। छोड़ो मुझे, मैं जान ले लूंगी आपकी। वो इसके बालों को मुट्ठी में दबोचे घबराई थी। बालाश आने से बेड पर पटका था और खुद इस पर छुप गया। इसकी सर निगाहों से आयत को अपनी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट महसूस हुई। इसने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। वो जो बहादुरी से इसे थप्पड़ लगा गई थी अपने भाइयों के सामने, अकेले में इसके इतने करीब आने पर कबूतर की तरह आंखें बंद कर गई। आंखें खोलो। बालाज इसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता इंतहाई सर्द लहजे में बोलता। इसकी धड़कनों में तलातुम बरपा कर गया था। बालाज शाह ने इसकी मुसलसल खामोशी पर इसका चेहरा गुस्से से दबोचा। आंखें खोलो। इस बार इसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आयत में साख्ता अपनी आंखें वाह कर गई। वो नीली आंखें जब बलाच की पुरस्कार आंखों से टकराई तो आंखों में चुभी सफाकियत से आयत को अपनी जान निकलती महसूस हुई। लगता है मेरी बीवी, मेरी कुर्बत इंतहाई नागवार गुजर रही है। बालाज इसके गाल पर अपनी सर्द उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए नागवारी से बोला, छोड़े मुझे, आप एक कातिल हैं। घिन आ रही है मुझे आपके लम्स से। वो इसका लम्स अपनी कमर पर महसूस करती गुस्से से चीख पड़ी थी। इसके इसकी बात पर बलाल शाह को अपने जिस्म पर शरारे से फूटते महसूस हुए। वो जारहाना अंदाज में इसकी गर्दन पर झुका और वहां बेदर्दी से अपने दांतों के निशान छोड़ने लगा। इसके दांतों की चुभन अपनी गर्दन पर इस कदर बेदर्दी से महसूस करके आयत की दर्द के मारे सिसकी निकली थी। वो आंसू आंखों से निकलकर बाहर बालों पर जज्ब हो गए थे। इसने अपने हाथों का दबाव बालाज शाह के सीने पर डाला और इसे दूर करने लगी। इसकी मजाहमत पर बलाज ने इसके दोनों हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए, तकिए पर तकिए पास लगा दिए और एक हाथ इसकी शर्ट कमर से ऊपर करने लगा। प्लीज नहीं। वो आयत की गर्दन को छोड़ता इसके निचले होंठ पर झुक कर इस पर अपने दांतों से जुल्म ढाने लगा। आयत को लगा वो मर जाएगी। ये वो बलाज नहीं था जो हमेशा इसके साथ नरमी से पेश आता था, जो इससे मोहब्बत का दावेदार था। ये कोई और बलाज ही था जो इसके इल्जाम लगाने का इंतकाम ले रहा था, जिसके लम्स में नरमी जरा भी नहीं थी। वो बस इस वक्त इसे सलार की बहन की हैसियत से छू रहा था। इसने अपने पाँव को हरकत देने की कोशिश की जो बलाश की टांगों की गिरफ्त में थी। वो बेबसी से रोने लगी, मगर बलाश को इसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आयत को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ। तकलीफ हो रही मेरी जान को। बलाश इसके होठों को आजादी बख्शता इसको देखकर गंभीर लहजे में बोला तो आयत ने नफरत से अपना चेहरा मोड़ लिया। इसका चेहरा मोड़ना भला बालाश शाह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसके चेहरे पर खतरी चाह गई थी। वो जरा सा नीचे झुककर इसके पेट से शर्ट हटाकर वहां बुरी तरह अपने दांत काट गया। आयत की चीख बुलंद हुई थी। इसके सितम पर वो एकदम इसको हटाने के लिए उठने लगी, मगर बालाज ने इसकी गर्दन पर हाथ रखकर इसे अपने वा, वापस इसे वापस लिटा दिया। न जाने वो मजीद क्या कुछ कर जाता कि अचानक बजते फोन पर वो सख्त बदमजा हुआ और इसके पेट को आजादी बख्शता उठकर अपनी जेब से फोन निकाल कर देखने लगा, जहां फरजाद का नाम जगमगा रहा था। दिन में एक मोटी सी गाली दी और फोन उठाकर कान से लगाया। न जाने वहां से क्या कहा गया। ओके, आता हूँ, वो कहकर फोन बंद करके जेब में रखकर आयत की तरफ मतवज्जा हुआ, जो खुद को संभालने की कोशिश करती हिचकियों से रो रही थी। दुश्मनी और मोहब्बत के सामने से वार करने की हिम्मत रखता हूँ। पीठ पीछे वार करना और भरोसा तोड़ना खानजादों का पसंदीदा मशगला हो सकता है, बलाशाह की आदत नहीं। बलाशाह अपने दुश्मनों को मार कर कबूल करने का हौसला रखता है। बहुत जल्द मैं अपनी बहन के कातिल को ऐसी सजा दूंगा कि इसे कब्र भी नसीब नहीं होगी, और मुझे ऐसा करने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। बलाशाह इस पर झुके गर्द
सर्द गंभीर लहजे में चबा चबा कर बोलता बैद कुछ जता गया। अपनी बात मुकम्मल करते वो वहां से रुका नहीं था। इसके जाते ही आयत अपने बिखरे हुलिये की परवाह किए बिना कमरे से भागी थी। बालाशाह जैसा इंसान सिर्फ धमकी नहीं देता था, बल्कि जो कहता था वो करके दिखाता था। वो अपने भाई को कैसे मरते हुए देख सकती थी। सालार जो इसी वक्त घर में दाखिल हुआ था, आयत को अंधाधुंध इस कमरे में इसके कमरे की तरफ आते देखकर हैरान हुआ था। वो जल्दी से इसे थामा था। इसकी हालत देखकर वो परेशानी से इसे देखने लगा। आयत, मेरा बच्चा ठीक हो तुम? क्या हुआ है? आयत इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे फिक्रमंदी से पूछने लगा। भाई आप चले जाओ यहाँ से दूर। आप यहाँ नहीं आना। वो आपको मार मार देगा। चले जाओ। वो हज़ियानी अंदाज में बस सालार को मनाने की कोशिश कर रही थी। इसकी हालत इस वक्त काबिले रहम लग रही थी। इसकी बातें और होंठ की गर्दन पर दांतों के निशान से इसकी बातें अच्छे से समझ गया था। अपनी बहन की हालत देखकर सालार का चेहरा खतरनाक हद तक लाल हुआ था। वो फौरन अपनी नजरें चुरा गया। भाई प्लीज आप चले जाओ। वो बहुत सफाक है। वो कातिल है। आयत आयत का डरा हुआ रूप देखकर इसने खींचकर अपनी बहन को सीने में खींच लिया था। कोई कुछ नहीं करेगा, रिलैक्स, बस हम हैं ना तुम्हारे साथ। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको तो मैं बताऊंगा इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की। जान ले लूंगा मैं इसकी। सालार ने इसकी बालों में हाथ फेरते पहली बार बहुत नरमी से दूसरी बात सर्द लहजे में कही थी। आयत ने तड़प कर सालार को देखा। नहीं भाई प्लीज। वो इसे मारने की बात पर ही तड़प गई थी। सालार ने बेबसी से अपनी बहन को देखा, जो ना भाई को तकलीफ में दे सकती थी ना शौहर को। ओके तुम रिलैक्स हो जाओ। सालार इसे साथ लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। जिजा के चीखने की वजह से इसकी टांकें खुल गई थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई थी। मगर बर वक्त डॉक्टर के इलाज से वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। मगर दवाइयों के जेर असर अभी तक गनौटी छाई हुई थी। शहरयार सुबह ही लाहौर से लौटा था, लेकिन जैसे ही इसे खबर मिली वो अस्पताल चला आया था। अब कैसी है जिजा? और तुमने मुझे एक कॉल तो की होती। हद है। वो आदम से मिलते हुए नाराजगी जताना नहीं भूला। यार सिचुएशन ही ऐसी थी, कुछ समझ नहीं आया। बट नाउ शी इज फाइन। चलो मिलवाता हूँ तुमसे। आदम संजीदगी से बोलकर अंदर बढ़ गया। वो पुलिस यूनिफॉर्म में था। अंदर जाकर शहरयार ने बुलंद आवाज में सलाम किया था, मगर फरवा बेगम को देखकर शहरयार शर्मिंदा हो गया था। सबने खुश दिली से जवाब दिया। इसकी दूसरी नजर शिफा की गोद में खेलती मन्नत पर गई, जो शिफा के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। शिफा और फरवा बेगम सुबह ही आई थी। निजा को देखने। कैसे हो बेटा? घर नहीं आते अब तुम? इतनी जल्दी पराया कर दिया हमें। फरवा बेगम के शिकवे पर वो मजीद शर्मिंदा हुआ था। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। बस आदम को पता है मसरूफियत बहुत होती है, टाइम नहीं मिलता। वो धीमे लहजे में जवाब देकर जिजा की तरफ मतवज्जा हो गया, जो इनकी आवाज पर आंखें खोल चुकी थी। कैसी तबीयत है बेटा? शहरयार ने शफकत से जिजा के सर पर हाथ रखकर पूछा। मैं ठीक हूँ भाई, जिजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो आदम के बचपन के दोस्त था। इसकी वजह से बचपन से ही इसका आना जाना था। वो आदम की तरह ही सबसे प्यार मोहब्बत से पेश आता था। खानजादा मेंशन का एक फर्द बन गया था वो भी, मगर बीच में हुए एक सानिया ने सब बदल दिया था। इसके बाद शहरयार ने इस घर में आना बंद कर दिया था। बेटा, बहू को लेकर आओ घर कभी। मेरी तो ख्वाहिश अधूरी रह गई तुम्हारी शादी में तुम्हें अपने हाथ से दूल्हा बनाने की। आपके लिए मैं दूसरी शादी कर लूंगा आंटी, बस आप आने वाली बने। फरवा बेगम की शिकायत पर इसने शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा तो आदम का कहका गूंजा था। फरवा बेगम ने मुस्कुराकर एक बहुत रसीद की थी शहरयार की पर। आदम, अच्छा आदम मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज एक जरूरी काम निपटाना है। शहरयार जिजा के सर पर हाथ रखता इसे इनसे मिलकर चला गया था। आदम भी शिफा को लेकर घर के लिए निकल आया था, क्योंकि आज फरवा बेगम जिजा के साथ रुकना चाहती थी। आदम और सालार इस वक्त डॉक्टर के रूम में मौजूद थे। डॉक्टर ने कोई जरूरी बात करने के लिए इन्हें अपने रूम में बुलाया था। फरी भी वहां मौजूद थी। डॉक्टर की नजरें अपने हाथ पर में मौजूद रिपोर्ट पर थी। इनके चेहरे पर संजीदगी देखकर सालार का दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। मिस्टर सालार, यह आपकी वाइफ की रिपोर्ट है। चूंकि इनकी जान बचाना ही एक मौजज़ा था हमारे लिए। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि गोली जिस्म के आर पार होने के बाद भी जिंदा बच जाए, लेकिन अल्लाह को इनकी जिंदगी मंजूर थी, तो अल्लाह ने इन्हें मजीद मोहलत दे दी है।
लेकिन एक बुरी खबर है मेरे पास। डॉक्टर की बात पर तीनों के चेहरे पर साया सा लहराया। आपकी बेबी अब कभी माँ नहीं बन सकती। इनका जिस तरह से मिसकैरेज हुआ, जिस जगह इनको गोली लगी, ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है कि आप लोगों के बीच सांस ले रही है। डॉक्टर की बात पर आदम और सालार दोनों के चेहरे ही धुआं धुआं हुए थे। एकदम सालार को वहां ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। वो बिना कुछ कहे वहां से निकलकर बाहर आ गया। इसका कोई हल नहीं, कोई तो इलाज होगा। आदम ने डॉक्टर से संजीदगी से पूछा। वो जानता था इसकी बहन बच्चों की दीवानी है, मन्नत को भी सारा दिन अपने साथ रखने की कोशिश करती है, तो कैसे एक उजड़ी गोद को देख पाएगी। नहीं मिस्टर आदम, इसका कोई इलाज नहीं। बाकी डॉक्टर फरिया एक बेहतरीन डॉक्टर है, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकती है। डॉक्टर अपनी पेशा वाराना अंदाज में कहकर वहां से उठ गई। आदम और फरी जब वहां से बाहर निकले तो सालार को दोनों हाथों से अपना सर थामे बैठे पाए। सालार, आदम की भारी गंभीर आवाज पर सालार ने सर उठाया। जी भाई। जब से इसमें आंखें शदीद सुर्ख हो रही थी। अल्लाह के फैसले पर राजी होना सीखो, वो बेहतर नवाजने वाला है। जब हम हर चीज से मायूस हो जाते हैं तब अल्लाह हमें वहां से नवाजता है जहां से हमें उम्मीद नहीं कर सकते। आदम की संजीदगी से कही हुई बात इसका दर्द से कमी महसूस हुई। भाई मैं ये सब इसे नहीं बताना चाहता, वो टूट जाएगी। सालार ने बेबसी से कहा। हम भी नहीं चाहते कि इसे कुछ पता चले। ये बात हम पांचों के बीच में है। आदम, अर्श, तुम और बलाद शाह। हम पांचों में से ये बात कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आगाही ज्यादा तकलीफ दे होता है। परी की बात पर आदम ने भी इस बात में सर हिलाया। भाई मैं बलाज और अपना मसला आज ही खत्म करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद जो भी हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन सिर्फ इस वजह से रोज रोज आयत को अजियत में नहीं देख सकता। सालार ने आदम को देखकर संजीदगी से अपना फैसला सुनाया। वो कल रात अपनी बहन की हालत भूला नहीं था। डोंट वरी, आज ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तैयार रहना, रात में तुम्हें चलना है मेरे साथ। आदम के चेहरे पर इत्मीनान था। अर्श जिजा की तबीयत की वजह से घर नहीं आ पाया था। आज भी पूरे 2 दिन के बाद इसने घर में कदम रखा था, तो रात के इस पहर बिल्कुल खामोशी थी। इसे फ्रेश होकर वापस जाना आदम का कहना था। आज इसके मसले को जड़ से खत्म करना है और इन तीनों का साथ होना जरूरी है। कमरे में दाखिल होते ही इसकी पहली नजर अपनी बीवी पर पड़ी। दीवार का सहारा लिए वॉशरूम से निकल रही थी। वो परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा और इसके बाजू में उठाकर बेड पर बिठाया। अकीदत ने नजरें उठाकर अर्श खानजादा को देखा, जो आंखों में फिक्रमंदी लिए इसे देख रहा था। क्या हुआ मेरी जान, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अर्श ने इसके सुर्ख चेहरा थपथपा कर पूछा। मैं ठीक हूँ, बस मैं जो भी खाती हूँ वॉमिटिंग हो जाती है। अकीदत ने अर्श के सीने में सर छुपाते कहा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अर्श इसे थामता उठने लगा, मगर अकीदत ने इसकी शर्ट थामकर इसे रोक लिया। मुझे नहीं जाना, वो कड़वी गोलियां देंगे, मुझे नहीं खानी। अकीदत ने मुंह बनाते कहा तो अर्श के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। मेरी जान, ऐसे तो फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जब कुछ खाओगी खा नहीं पाओगी। मुझे और मेरी बेटी बिल मुझे और मुझे मेरी बेटी बिल्कुल सेहतमंद और गोलू मोलू सी चाहिए, तुम्हारी तरह सूखा कांटा नहीं। अर्श ने इसे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर इसकी सेहत पर चोट की। अकीदत झटके से इससे दूर हुई। क्या कहा? इसने होनहार नजरों से अर्श को देखकर कहा। क्या कहा मैंने? अर्श ने अनजान बनते पूछा। मुझे क्या बोला आपने? चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।